بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز احباب گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انسان پیدائشی طور پر کمزور تخلیق کیا گیا ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کئی طرح کے گناہ کر جاتا ہے، مگر قرآن اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کر انسان شیطان سے نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے بلکہ شیطان کو بے بس بھی کر سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم سب اپنے نفس کی پیروی چھوڑ کر اسلامی طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ زیر نظر ویڈیو بھی کچھ اسی طرز پر مبنی ہے کہ کس طرح شیطان نے ایک نیک اور پاک شخص کو بہکایا، اور نہ صرف بہکایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا مجرم تک بنا دیا۔ اس ایمان افروز واقعہ کو سنانے کے لیے آپ تمام احباب کی توجہ درکار ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ اس زمانے میں کوئی عبادت گزار اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی جو باکرہ تھی۔ اس بہن کے سوا ان کی کوئی بہن نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عبادت گزار شخص کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد شخص ان کے خیال کے مطابق تمام بنی اسرائیل میں سکا اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اس عبادت گزار شخص کے پاس آئے اور اپنی بہن کو اس کے حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں کہ ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے۔ اس عبادت گزار شخص نے انکار کر دیا اور ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں، حتیٰ کہ عبادت گزار شخص نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ ان تینوں بھائیوں نے اپنی بہن کو اس عبادت گزار شخص کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر میں لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عبادت گزار شخص کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عبادت گزار شخص اس کے لیے کھانا لے کر جاتا تھا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور واپس اندر چلا آتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی تھی۔ راوی واقعہ بیان کرتا ہے کہ پھر شیطان نے عبادت گزار شخص کو بہکانا شروع کر دیا۔ ابتداً اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت پر رخنا انداز ہو۔ بہتر یہی ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کرو، اس پر تم کو اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ عبادت گزار شخص کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ ایک مدت کے بعد شیطان پھر اس عبادت گزار شخص کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہو، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہوگی۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ یہ عبادت گزار شخص اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس جانے لگا۔ پھر ایک مدت کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ عبادت خانے کے در پر اور اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھو اور دونوں باہم باتیں کرو تاکہ اس کو انس ہو۔ آخر کار شیطان نے اس عبادت گزار شخص کو عبادت خانے کے دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر کے دروازے پر آتی، عبادت گزار باتیں کرنے لگتا۔ ایک زمانے تک یہی حال رہا۔
शैतान ने इबादत गुजार शख्स को फिर कार खैर की रगबत दी और कहा, बेहतर है कि खुद लड़की के घर करीब जाकर बैठो और हम कलामी करो, इसमें ज्यादा दिलदारी है। इबादत गुजार शख्स ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसीले सवाब की रगबत दी और कहने लगा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाओ तो ये बेहतर है, ताकि उसको दरवाजे तक आने में कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। इबादत गुजार शख्स ने यही किया कि अपने इबादत खाने से लड़की के दरवाजे पर आकर बैठ जाता और उससे बातें करता रहता। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने इबादत गुजार को फिर उभारा कि अगर ऐन घर के अंदर जाकर बातें किया करो तो बेहतर है, ताकि लड़की को बाहर ना आना पड़े और कोई उसका चेहरा ना देख पाए। गर्ज इबादत गुजार ने शेवा इख्तियार किया कि लड़की के घर अंदर जाकर दिन भर उससे बातें किया करता और रात को अपने इबादत खाने पर आ जाता। इसके बाद शैतान फिर इबादत गुजार शख्स के पास आया और लड़की की खूबसूरती इस इबादत गुजार शख्स पर जाहिर करता रहा, यहाँ तक कि इबादत गुजार शख्स ने लड़की के जानू पर हाथ मारा और उसके रुखसार का बोसा ले लिया। फिर रोज बरोज शैतान लड़की को उसकी नजरों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलबा करता रहा, हत्ता कि इबादत गुजार शख्स उस लड़की से मुलव्वस हो गया और लड़की ने हामला होकर एक लड़का पैदा कर दिया। फिर शैतान इबादत गुजार शख्स के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर उस लड़की के भाई आ गए और उस बच्चे को देख लिया तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूँ कि तुम जलील हो जाओगे या वो तुम्हें रुस्वा करेंगे। तुम उस बच्चे को लो और जमीन में गाड़ दो। वो लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कि कहीं वो जान ना लें कि तुमने उसके साथ क्या हरकत की। इबादत गुजार शख्स ने ऐसा ही किया और लड़के को कत्ल करके जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने इबादत गुजार शख्स से कहा कि क्या तुम यकीन करते हो कि ये लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं, तुम उसको भी पकड़ो और ज़िबा करके बच्चे के साथ दफन कर दो। गर्ज इबादत गुजार शख्स ने शैतान के बहकावे में आकर लड़की को कत्ल कर दिया और बच्चे समेत गड्ढे में डालकर उस पर एक भारी पत्थर रख दिया और जमीन को बराबर करके अपने इबादत खाने में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद जब लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और इबादत गुजार शख्स के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा तो इबादत गुजार शख्स ने उनको उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहने लगा कि वो बड़ी नेक बीबी थी, देखो वहाँ उसकी कब्र है। भाई उस कब्र पर गए और उसके लिए दुआए खैर की और रोते पीटते चंद रोज उसकी कब्र पर रहकर अपने घर को वापस आ गए। रावी का बयान है कि वो तीनों भाई अपने अपने बिस्तरों पर एक रात सोए तो शैतान उनको ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में बन कर आया। पहले बड़े भाई के ख्वाब में आया और उसकी बहन का हाल पूछा। उस भाई ने ख्वाब ही में उस इबादत गुजार शख्स के बारे में बताया कि उसने हमारी बहन के मरने की खबर दी है और हमें बहुत अफसोस हुआ और मुकामे कब्र भी उसको दिखाया। शैतान ने कहा, ये सब झूठ है, तुमने क्यों कर अपनी बहन का मामला सच मान लिया? इबादत गुजार शख्स ने तुम्हारी बहन से बदफेली की है, वो हामला हो गई थी और उसने एक बच्चा जना था। इबादत गुजार शख्स ने तुम्हारे डर के मारे उस बच्चे को उसकी माँ समेत ज़िबा कर दिया और गड्ढा खोदकर दोनों को उसमें दबा दिया। जिस घर में तुम लोग उसको छोड़कर गए थे उसके अंदर दाखिल होने के बाद वो गड्ढा दानी जानी पड़ता है। तुम तीनों भाई जाओ और उस घर में जाकर देखो, तुमको वहां दोनों माँ बेटे की लाशें दबी हुई मिल जाएंगी। फिर शैतान मंझले भाई के ख्वाब में आया, उससे भी ऐसा ही कहा। इसके बाद छोटे भाई के ख्वाब में आया और उससे भी यही गुफ्तगू की।
जब सुबह हुई तो तीनों भाइयों ने अपने अपने ख्वाब जाहिर किए। हर एक ने आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू की कि मैंने रात ये अजीब ख्वाब देखा। सब ने बाहम जो कुछ देखा था बयान किया। बड़े भाई ने कहा, ये ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा भाई कहने लगा कि नहीं, मैं तो जब तक उस मुकाम को देख ना लूंगा बाज ना आऊंगा। लिहाजा वो तीनों भाई चले। जिस घर में वो अपनी बहन को छोड़कर गए थे वो उसमें दाखिल हुए और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी तलाश की और वहां उन्होंने गड्ढा खोदा तो उनको उनकी बहन एक बच्चे समेत मिट्टी में दबी हुई मिल गई। उन तीनों भाइयों ने इबादत गुजार शख्स से कुल कैफियत दरियाफ्त की। इबादत गुजार शख्स ने शैतान के इस कौल की उस फेल के बारे में तस्दीक कर दी। उन तीनों भाइयों ने अपना मुकदमा बादशाह की अदालत में रख दिया। बादशाह ने सारा मामला सुनने के बाद इबादत गुजार शख्स को सजाए मौत की सजा सुना दी। जब इबादत गुजार शख्स को तख्तादार पर खड़ा किया गया तो शैतान उसके पास आया और उससे कहने लगा, तुमने मुझे पहचाना? मैं ही तुम्हारा वो साथी हूँ जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहाँ तक कि तुमने उसको हमला कर दिया और ज़िबा कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा कर दो तो मैं तुमको इस बला से निजात दिला दूंगा। इबादत गुजार शख्स ने बिना सोचे समझे शैतान को सजदा कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला से काफिर हो गया। फिर जब इबादत गुजार शख्स ने कुफर बिल्लाह किया, शैतान उसको उसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया। उन्होंने इबादत गुजार शख्स को तख्तादार पर खींचा और फांसी दे दी। इस तरह वो आबिद शख्स अपने अंजाम को पहुंच गया। नाजरीने ग्रामी, इसमें दरसे हयात ये है कि अंदाजा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और उसके वार किस कदर खतरनाक होते हैं। चुनाचा हमें चाहिए कि इस वाकया से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक शैतान मरदूद से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।